A very good morning to you all. Today I am back with second video from plant physiology. In our last class we discussed about diffusion where we talked about process of diffusion, characteristics of diffusion, what is facilitated diffusion, what are the characteristics of facilitated diffusion. Then we moved on to active transport, and by those things we covered up our first video from plant physiology. I have already talked that plant physiology is a very important aspect. It is important for day to day life when we relate to plants, as well as it is important to cover things from entrance point of view as well as subjective point of view. It is a major portion of any kind of entrance exams. So, depending on those things, we are already up for plant physiology. So, before moving ahead to our today's session, that will consist of plant water relations, that is, osmosis, water potential, osmotic potential. We will talk a little about DPP also, but for details of DPP and DPD, we will talk in next class. Today, majorly we will discuss three topics, that is osmosis, water potential, osmotic potential. First, let's take a quick revision of what we studied in last class, that are the transport mechanisms. Without going into deep of those things, to quickly revise, we have a table that constitutes of comparison of different transport mechanisms, where the characteristic properties are given and three types of different transport mechanisms are given. We read that in simple diffusion we do not require special membrane protein, because in case of simple diffusion what happens is the substances just move from their region of higher concentration to their region of lower concentration. Because they are moving along the concentration gradients, they do not require any special membrane proteins. But on the other hand, even when the transport is facilitated along the gradient in case of facilitated diffusion, it requires special membrane protein. And similarly, the active transport also requires special membrane protein. We talked about aquaporins in case of facilitated diffusion. We talked about other channels from active transport in last class. So from there we can recall that we require special membrane protein in case of active transport as well as in case of facilitated transport. Then about selectivity. Simple diffusion is not highly selective, while facilitated and active both are highly selective type of transport mechanisms. Similarly, transport doesn't saturate in case of simple diffusion, वो चलता रहेगा रैंडम मैनर में. लेकिन फैसिलिटेटेड और एक्टिव के केस में जैसे ही आपके सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो जब कम यूज हो जाएंगे, जब जो भी आपके प्रोटीन पंप्स जिनको आप यूज कर रहे हो वो यूज हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिमिलरली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा. इट सैचुरेट्स योर ट्रांसपोर्ट और द रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट saturates. It reaches a maximum when all the protein pumps have been used in transport, that we know as saturation effect. So saturation effect किस में होता है? फैसिलिटेटेड और एक्टिव में, क्योंकि वहां पे प्रोटीन पंप्स यूज हो रहे हैं. जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट सेचुरेट हो जाएगा. बट डिफ्यूजन के केस में ऐसा नहीं होता. सिमिलरली डिफ्यूजन की हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था अगर अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, कहने का मतलब हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन, तो उसको हम बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, जो कि सिर्फ डिफ्यूजन में हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हो रहा है. बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट काम होता है, इसीलिए दैट इज अप हिल ट्रांसपोर्ट. तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वहां डाउन हिल है. एक्टिव के केस में अपहिल है. एंड
ATP energy is also required in active transport only, क्योंकि वहां against the concentration gradient चलना है. Diffusion और facilitated transport में ATP energy की जरूरत नहीं है. This is what we read in the last class. This is nothing new, but we just revised what we studied in the last class because these things are important, क्योंकि हमें आगे भी इनको correlate करते हुए चलना पड़ेगा. Talking about our today's topic. The very first topic is about water potential. In last class, I talked about water, why water is important to plants, about its characteristic properties. I will provide a PDF link with you where you can see from my own notes what characteristics water has. That is something not to be discussed. वो उसको हमें डिस्कस यहाँ करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें हमें वैसे भी समझ में आ जाएंगी. तो उसके लिए मैं आपको एक PDF लिंक प्रोवाइड करूंगी. फ्रॉम देयर यू कैन सी व्हाट प्रॉपर्टीज वाटर पोजेस और वो प्लांट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. और उनके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर भी चुके थे, जहां हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, जहां हमने बात की थी वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जब मैंने आपको बताया था कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वाटर अच्छा सॉल्वेंट होता है, ये बातें हमने की थी. उसी को रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए आई विल गिव यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो, फ्रॉम वेयर यू कैन ओपन दैट एंड वॉच एंड नोट. तो वाटर हमें ये पता है कि प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. उसी के बेसिस पे एक टर्म होती है जो यूज होती है वाटर प्लांट्स में, दैट इज वाटर पोटेंशियल. What happens in case of water potential? Let's see. Water molecules possess kinetic energy. Of course we know water molecules में kinetic energy present है, क्योंकि water के molecules इधर से उधर move कर रहे हैं rapidly and constantly rapid motion में. क्योंकि in liquid and gaseous form they are in random motion, that is both rapid and constant. ये बात इसने यहाँ पे भी बोल दी कि लिक्विड और गैसियस फॉर्म में व्हाट हैपेंस इज वाटर मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो बहुत रैपिडली एंड कॉन्स्टेंटली एक रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, इधर से उधर. सो द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी. एक सिस्टम में वाटर की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे. अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स दौड़ेंगे, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे एंड उस वजह से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी. दिस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वाटर पोटेंशियल. The kinetic energy possessed by water molecules due to their rapid and constant motion is known as water potential. तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर की जो फ्री एनर्जी है that is known as water potential. The free energy of water or the kinetic energy possessed by water molecules due to their rapid and constant random motion is known as water potential. अगर मैं जनरली इस बारे में बात करूं कि पानी की कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो एक नॉर्मल मैनर में मैं आपको ये एग्जांपल दे सकती हूँ कि मान लो बिहाइंड द डैम का नाम आपने सुना होगा ना, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम, लाइक दैट आर मेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. उनके पीछे बैक में वाटर स्टोर्ड होता है डैम में. तो वो जो वाटर स्टोर होता है डैम में, क्या होता है जब वो पानी डाउनहिल जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जब हम ये बोलते हैं कि वाटर डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसके वो कहने का क्या मतलब है, कैसे बन रही है? वहां पे पानी पड़ा रहता है, उसी से थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है. व्हाट हैपेंस इज कि एक काइंड ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं दूसरी काइंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती होगी, और उसके लिए क्या होता है, अलोंग द डैम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है. क्यों? क्योंकि वाटर की कोई और एनर्जी रही होगी, और क्योंकि एक हाइट पे प्रेजेंट होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी. जब वाटर डाउनहिल जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
और ये कन्वर्जन किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। ऑफ कोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी एक्ट करती है ना हाइट पे, सो कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटी। सिमिलरली प्रेशर एक अनदर सोर्स होता है जो वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे वाटर पे तो इट इंक्रीजेस द फ्री एनर्जी एंड उस वजह से वाटर पोटेंशियल आ जाता है किसी सिस्टम में। तो आप ये कह सकते हैं कि वो फ्री एनर्जी वाटर की वाटर पोटेंशियल है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर जो होता है वो वाटर पोटेंशियल है, और जितनी ज्यादा वाटर की कंसंट्रेशन होगी उतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उसका उतना ही हाई वाटर पोटेंशियल होगा। प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। ऑफ कोर्स सी बात है, जो प्योर वाटर होगा उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स ही ज्यादा से ज्यादा होंगे, उसके अंदर इम्प्योरिटीज या तो नेग्लिजिबल होंगी या तो होंगी ही नहीं। जब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा होंगे तो किसी भी और सॉल्वेंट या किसी भी और ऐसे पानी की बजाय जो डिस्टिल्ड टाइप का हो या टैप वाटर हो, रेन वाटर हो, उस तरह का हो, तो जो प्योर वाटर होगा उसका सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। आइडियल सिचुएशंस में pure water have the greatest water potential. Now, if two systems containing water are in contact, suppose करो दो सिस्टम हैं जिनमें पानी है और वो कंटैक्ट में है एक दूसरे के साथ, then what happens is random movement of water molecules will result in net movement of water molecules from the system of high to low energy. समझने वाली चीज है, डिफ्यूजन हमने पढ़ा हुआ है, बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर दो ऐसे सिस्टम हैं जिनमें पानी है और वो एक दूसरे के कंटैक्ट में है, तो उनके मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, कहाँ होगी नेट मूवमेंट? वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम देयर हाई एनर्जी टू देयर लो एनर्जी। जैसे डिफ्यूजन के केस में क्या हो रहा था, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन मूव किए थे, वैसे ही अगर दो ऐसे सिस्टम है जहाँ पे पानी है और वो सिस्टम्स कंटैक्ट में है, तो उनकी मूवमेंट कैसे होगी? फ्रॉम द सिस्टम ऑफ हाई एनर्जी टू द सिस्टम ऑफ लोअर एनर्जी। इसीलिए what will happen is thus water will move from the system containing water at higher water potential to the one having lower water potential. जहां ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि हम ऊपर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल, और फिर हमने ये बात की कि नेट मूवमेंट कहाँ होगी? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के रीजन में। कहने का मतलब क्या है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल हमारी मूवमेंट होगी। इस चीज को हम बेटर समझते हैं फ्रॉम डायग्राम। see this diagram where you have three solutions given. One is of pure water, another one is of dilute solution, and third one is concentrated solution, where you are given the water potentials. जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको वाटर पोटेंशियल भी मेंशन किया जाएगा, बट ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि जो वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है या जीरो होता है। तो मैंने ये बात आपको बताई कि प्योर वाटर का सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा का मतलब है जीरो। प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, जब उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा, जीरो कंसिडर किया जाता है, एंड दैट इज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल वैल्यू। इसको काई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज इन द प्रेजेंटेशन इट इज रिटन एज वाई, बट वाइल इट इज काई। डायग्राम में जो साइन बना हुआ है दैट इज काई। काई इक्वल्स टू 0 किलो पास्कल, काई इक्वल्स टू -200 किलो पास्कल, ऐसा लिखा है ना डायग्राम में। सी दिस प्योर वाटर के नीचे जहां पे मेरा एरो जा रहा है, सी दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कंसंट्रेटेड के लिए, दिस काई इज द ग्रीक सिंबल that is used to denote water potential and it is pronounced as chi and it is expressed in pressure units. water potential एक तरीके का प्रेशर ही होता है, लेकिन इसकी वैल्यूज नेगेटिव या जीरो हो सकती हैं, इसीलिए इसको वाटर पोटेंशियल बोला जाता है, और इसकी जो यूनिट है वो भी प्रेशर वाली ही होती है, दैट इज पास्कल। तो अब देखो इस डायग्राम को, प्योर वाटर का
पोटेंशियल आपको दे दिया, डाइल्यूट का दे दिया, कंसंट्रेटेड का। मैथमेटिकली यू नो दिस थिंग कि नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी उतनी ज्यादा नेगेटिव, कहने का मतलब उतना कम वाटर पोटेंशियल। तो वैल्यू प्योर वाटर की सबसे ज्यादा हो गई, उससे कम डाइल्यूट की और उससे कम कंसंट्रेटेड की। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, क्या बात की थी हमने, फ्रॉम द रीजन ऑफ दिस हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां से मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए आई हैव शोन यू दिस स्लाइड। हमने क्या बात की थी कि कहां से कहां मूव करना चाहिए, जस्ट लाइक डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल के केस में हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ क्या मूव करेगा, इसका सबसे हाई, इसका उससे लो, इसका उससे लो, कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स इसमें से इसमें जाएंगे, कम जाएंगे, क्योंकि इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्योर वाटर से तो कम है लेकिन कंसंट्रेटेड के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ डिफ्यूज कर जाएंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। सो व्हाट विल हैपन इज वाटर डिफ्यूज करेगा पहले 0 से -200 एंड उसके बाद -200 से -500। दिस विल बी द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर from pure water to dilute solution to concentrated solution. Okay. If some solute is dissolved in pure water, क्या बात हो रही है कि अगर कुछ solute आपने dissolve कर दिया pure water में, तो जिस solution में कम water molecule हैं and the concentration of water decreases, reducing its water potential. देखो exactly what happened is in this diagram. प्योर वाटर में आपने कुछ चीजें डाल दी, कुछ मिक्स कर दिया, कुछ सोल्यूट डाल दिया, तो वो डाइल्यूट हो गया, उसके बाद कुछ और सोल्यूट डाल दिया तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने प्योर वाटर में कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डाल दिए तो उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि उसमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। बिल्कुल सिंप्लीफाइड एंड समझने वाली चीजें हैं, समझने की कोशिश करेंगे अलोंग विद डायग्राम, देन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। सिंपल सा फंडामेंटल याद रखना है कि एकदम डिफ्यूजन की तरह मूवमेंट हो रही है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। बस यहाँ पे बात वाटर पोटेंशियल की और उसकी काइनेटिक एनर्जी की आ गई है। अगर पानी ज्यादा होगा तो वहां मॉलिक्यूल्स रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। उस केस में वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि वाटर ही वाटर है तो सारा उसी का पोटेंशियल है। लेकिन कोई और सोल्यूट आ गया तो वो कम होता चला जाएगा और जितना सोल्यूट आप डालते जाओगे उतना ही वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। नाउ all the solutions have a lower water potential than pure water। सीधी सी बात है, प्योर वाटर का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पानी है। उसके अलावा जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनका लोअर ही होगा पानी से। ये जो मैग्नीट्यूड है ऑफ लोअरिंग, ये जो कम हो रहा है, ये वाटर पोटेंशियल जो कम हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट डाल रहे हो उसी वजह से तो कम हो रहा है। इसको बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। दिस इज अनदर टर्म। इसी को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोला जाता है, इसी को सोल्यूट पोटेंशियल भी बोला जाता है। क्या बात हो रही है कि जो भी सॉल्यूशंस हैं जिनका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम है, तो जो ये मैग्नीट्यूड है ऑफ दिस लोवरिंग, ये कम होने का जो मैग्नीट्यूड है, this is due to dissolution of a solute and this magnitude of lowering is known as solute potential chi s, that is represented in the figure or table given at right hand side। chi s लिखते हैं solute potential को, chi की सबस्क्रिप्ट में s, मतलब chi के साथ साथ नहीं, chi के नीचे सबस्क्रिप्ट में s आता है। that is solute potential, that is always negative। water potential 0 भी हो सकता है लेकिन solute potential is always negative। the more the solute molecules, lower or more negative is chi s। क्या कह रहा है, exactly what we talked कि ज्यादा से ज्यादा solute डालोगे तो उसका water potential कम हो जाएगा। कम होने का मतलब नेगेटिव होता चला जाएगा।
तो अगर ज्यादा सोल्यूट डालोगे तो काई एस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। किसी भी ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेजेंट है उसके लिए वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल बराबर होते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा और प्योर वाटर पे आप उसको या किसी सॉल्यूशन पे उस प्रेशर को अप्लाई करोगे तो उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सोल्यूट पोटेंशियल, बट अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो इट्स वाटर पोटेंशियल विल इंक्रीज। एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू हैव अ सेल ए एंड यू हैव सेल बी। आपको सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी गई हैं दोनों केसेस में, प्रेशर पोटेंशियल की भी वैल्यूज दे दी गई हैं दोनों केसेस में। This pressure potential can be considered as water potential. तो solute potential की वैल्यू दे दी -16 एंड प्रेशर पोटेंशियल काई पी की वैल्यू दे दी 8 सेल ए के लिए। सेल बी में काई एस की वैल्यू -12 दे दी, सेल बी में काई एस की वैल्यू -12 दे दी और काई पी की वैल्यू 2 दे दी। ओके, तो बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगा, from where to where the water will move according to these values. Let's see if we have some answers, if someone has solved. Yes, is there anyone? Let me talk. Let me tell you from where the movement will happen. सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल ए में काई एस की वैल्यू -16 है, सेल बी में काई एस की वैल्यू -12 है। जो ओवरऑल काई होगा वो हर एक तरह के पोटेंशियल का सम होगा, ये बात ऑब्वियस है। आपको जो कंप्लीट पोटेंशियल मिल रहा है किसी सॉल्यूशन का उसमें हर तरीके के पोटेंशियल का रोल है। प्रेशर पोटेंशियल का भी रोल है, वाटर पोटेंशियल का भी रोल है, सोल्यूट पोटेंशियल का भी रोल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक होता है, उसके बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले यही पढ़ लेते हैं कि और किस तरह के पोटेंशियल्स होते हैं। दो पोटेंशियल्स और होते हैं अदर देन ऑस्मोटिक, सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल। एंड व्हाट आर दे? एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो इस बात पे प्रेजेंट करता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वाटर की पोजीशन क्या है। कहने का मतलब है अगर आप किसी ऐसे सिस्टम की बात कर रही हैं जहां पे पानी अबव सी लेवल प्रेजेंट है तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात होगी, क्योंकि सी लेवल पे इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0 मेगापास्कल। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है हमने ये बात की कि वो अगर या तो जो वाटर है वो अबव सी लेवल की हाइट पे प्रेजेंट हो या एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी लग रही हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 10 मीटर ऊपर जाओगे, अगर किसी सिस्टम को 10 मीटर्स अबव रेज करोगे तो उसका वाटर पोटेंशियल बाय 0.1 मेगापास्कल इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि सी लेवल पे 0 मेगापास्कल है। मैथमेटिक्स इज देयर। तो सेल के लेवल पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो ये सारी चीजें प्लांट सेल में कंसीडर कर रहे हैं। तो सेल के लेवल पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू है क्या वो नेग्लिजिबल नहीं हो जाएगी? इट विल बी नेग्लिजिबल, बिकॉज सेल तो प्लांट की बॉडी में है, वो सी लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं हम, वहां पे कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लग रही है। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेग्लिजिबल। एकदम से जीरो तो नहीं है, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल के कंपैरिजन में बहुत 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 कम है, नेग्लिजिबल है। दिस इज द रीजन कि उसको ओमिट कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट सेल। Gravitational potential is there, but there are some conditions to be fulfilled to have a gravitational potential in a cell. इसीलिए अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रेशर एंड सोल्यूट पोटेंशियल, एंड thus it is generally omitted.
तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक पोटेंशियल का रोल तो खत्म हो गया जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कैलकुलेशन तो करनी नहीं। नेक्स्ट आ गया मेट्रिक पोटेंशियल। ये क्या कह रहा है कि ये उस बात पे डिपेंड करता है ऑन एडजॉर्प्टिव फोर्सेस दैट बाइंड वाटर टू अ ड्राई मैट्रिक्स। एक ड्राई मैट्रिक्स को पानी से जो बाइंड करते हैं उन एड्सॉर्ब करने वाले फोर्सेस पे डिपेंड करता है आपका मेट्रिक पोटेंशियल। तो अब मेट्रिक पोटेंशियल जो है वो लिविंग सेल्स में तो बहुत लिमिटेड होता है और सेल लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू भी जीरो होती है, क्योंकि ड्राई मैट्रिक्स से बाइंड करने की तो बात ही नहीं आई ना जब प्लांट सेल की बात हो गई तो इसीलिए लिविंग सेल्स में हम वेट जो सेल्स होते हैं, वेट वेट ड्राई वेट दो तरह के होते हैं ना, यू वुड हैव रेड अबाउट दिस इन बायोमोलिक्यूल्स। तो वहां पे हम जब बात करें तो लिविंग सेल्स में मेट्रिक पोटेंशियल बहुत ही लिमिटेड होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू को भी नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। एंड द वाटर पोटेंशियल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू chi s plus chi p is equals to chi। कहने का मतलब ये है अगर आपको टोटल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो ग्रेविटेशनल की वैल्यू भी इग्नोर, मेट्रिक की वैल्यू भी इग्नोर अनटिल अनलेस इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में किसी और सेल की बात कर दी जाए और ग्रेविटेशन और मेट्रिक पोटेंशियल दे दिया जाए तो बात अलग है, तब आपको प्लस करना पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में अगर नहीं है तो उसको आपको कंसीडर करके चलना है जीरो, उसकी वैल्यू ही नहीं लेनी है। तो उस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू chi s plus chi p, chi is equal to chi s plus chi p। नाउ सीइंग द क्वेश्चन व्हाट विल हैपन, सेल ए है जहां पे chi s की वैल्यू -16 है, सेल बी में -12 है, सेल ए में chi p 8 है, सेल बी में chi p 2 है। देखते हैं कि सेल ए के लिए वैल्यू क्या निकल सकती है। व्हाट विल बी द वैल्यूज इन केस ऑफ सेल ए, व्हाट विल बी द वैल्यूज? I would need someone who can answer this question. If not, then I'll show. सेल ए की बात जब हो रही है, then what is happening? काई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने क्या बोला, काई की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी काई एस प्लस काई पी, राइट? काई एस की वैल्यू क्या है सेल ए में? इट इज गिवन -16। काई पी की वैल्यू क्या है? 8। So what will be net value for cell A? It will be -8. Fine. On the other hand, if we talk about cell B, what is the value of chi? Equals to chi s plus chi p। chi s की वैल्यू क्या है? इट्स -12। chi p की वैल्यू क्या है? 2। What will be the overall value? It will be -10। Do you get it? तो -8 वैल्यू किसके लिए आ गई? सेल ए के लिए। -10 की वैल्यू किसके लिए आ गई? सेल बी के लिए। तो अब -8 और -10 में से बड़ा कौन है? द बिगर वैल्यू इज -8 and the smaller value is -10। तो what will be the net movement? Net movement of water will be A to B, cell A to B, because this is the higher value of potential and this is the lower value of potential। and हमने बात की थी कि water potential जहाँ पे high होगा उस रीजन में मूवमेंट होगी जहाँ पे water potential कम है। कम वाली वैल्यू -10 सेल बी की है और ज्यादा वाली वैल्यू -8 यानी कि सेल ए की है। so the net movement of water will be from cell A to cell B। I hope I have made this thing clear to you. Fine. Then after this, I hope this question has been made clear to everyone.
कि मूवमेंट कहाँ हो रही है, इट विल हैपन फ्रॉम सेल ए टू सेल बी. नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ट अप. हमने प्लांट्स की बात तो कर ली, तो आप कोई ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में सोच सकते हो जहाँ प्रेशर बिल्डअप होता है. ऑफ कोर्स देयर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन प्रेशर इज बिल्ट अप देयर. All the mechanism lies in animal physiology portion. Then you have circulatory system, heart में pumping of blood चल रहा है, there is a kind of pressure there. So these are the kind of pressures in our own body. But if I talk about plants, तो वहाँ पे pressure build up कहाँ होता है? When water enters a plant cell, जब एक plant cell में पानी जाता है diffusion की वजह से, तो अगेंस्ट द सेल वॉल एक प्रेशर बिल्टअप होता है, क्योंकि पानी जा रहा है, आसानी से तो नहीं निकल जाएगा, कुछ ना कुछ हलचल तो सेल के अंदर होगी. एंड दैट इज द बिल्डिंग ऑफ अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनसाइड अ प्लांट सेल that makes the cell turgid and increases pressure potential. इस वजह से क्या होता है, सेल टर्जिड हो जाता है and pressure potential बढ़ जाता है. So pressure potential is usually positive, though in plants negative potential or tension in water column in the xylem plays a major role in water transport. Pressure potential की वैल्यू यूजुअली पॉजिटिव होती है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया जाता है कि प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल की एक्सेप्शन क्या है. दैट एक्सेप्शन इज वाटर कॉलम इन xylem. Xylem के केस में देयर इज नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल जब वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना होता है ऊपर स्टेम की तरफ. अदरवाइज प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव. और इसको किससे डिनोट करते हैं, फ्रॉम काई पी. क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व कर ही चुके हैं. एंड वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय बोथ सोल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल. तो जब दोनों से अफेक्ट होगा तो वैल्यू आ जाएगी काई डब्ल्यू इज इक्वल टू काई एस प्लस काई पी. On that basis we solve the numericals. We already talked about metric potential and gravitational potential. Now we have our last topic for today, that is osmosis. Now what is osmosis? Osmosis is the diffusion of water across a differentially or selectively permeable membrane. एक selectively permeable membrane लगा दी जाती है जो selectively सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करे या वाटर को अलाउ करे. आपको ये देखना है कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या काम करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है, सेमी मींस हाफ, तो हाफ उसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग वो मूव करा देगी. लेकिन अगर बात में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की कर रही हूँ तो वो सेलेक्टिवली ही मॉलिक्यूल्स को मूव करने देगी फ्रॉम वन to another membrane. So what happens in osmosis is, है ये वाटर का डिफ्यूजन ही, बट अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. और जो नेट डायरेक्शन है और रेट ऑफ ऑस्मोसिस है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे भी और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी. So the water will move from its region of higher chemical potential to its region of lower chemical potential until equilibrium is reached. तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? ऑस्मोसिस के केस में बेटा सिर्फ वाटर मूव करेगा. इन केस ऑफ ऑस्मोसिस ओनली वाटर विल मूव, क्योंकि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यूज कर लिया आपने, सोल्यूट को अलाउ नहीं करेगा ऑस्मोसिस. सो द वाटर विल मूव और द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम रीजन. वाटर की स्पेसिफिकली वाटर की बात करेंगे, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल या कंसेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल या लोअर कंसेंट्रेशन, जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए. इक्विलिब्रियम का मतलब एक दोनों तरफ सिचुएशन सेम ना हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों चैम्बर्स में ऑलमोस्ट सेम वाटर पोटेंशियल हो जाएगा. ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आता है, दैट इज ऑफ ऑस्मोमीटर. ऑस्मोमीटर इज पोटैटो ऑस्मोमीटर. अगर आप पोटैटो ट्यूबर को वाटर में रख दो तो पोटैटो ट्यूबर में कैविटी करने के बाद व्हाट विल हैपन इज, अगर उसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है जिसमें तो उससे क्या होगा, इट विल कलेक्ट वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस. मतलब व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ ऑस्मोमीटर इज, इफ द पोटैटो ट्यूबर इज प्लेस्ड इन वाटर, then the cavity in potato tuber containing a concentrated solution of sugar collect water due to osmosis.
पोटैटो ट्यूबर रख दिया पानी में, पोटैटो ट्यूबर में कैविटी कर दी और उस कैविटी में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दिया शुगर का, तो वो वाटर गेन करने लगेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोटैटो ऑस्मोमीटर। और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हमने डायग्राम का लिया है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड ऑस्मोमीटर एंड ऑस्मोसिस। सी द डायग्राम, यू हैव बीन गिवन ए सेल जिसके अंदर ऑस्मोस्कोप एक्सपेरिमेंट की भी हम बात कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ए एक तरह का ऑस्मोमीटर है और बी दूसरा ऑस्मोमीटर है, दैट आर डिफरेंशिएटेड यूजिंग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ए में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, बी में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, ए और बी दोनों में भी वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। पर आपको डायग्राम से दिख रहा है कि ए के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कितने हैं और बी के कितने हैं। आई विल नॉट टेल यू कि किसके ज्यादा है किसके कम है, इट इज क्लियरली विजिबल इन द डायग्राम। You have questions from the diagram that are: study figure 11.3 in which two chambers A and B containing solutions are separated by a semi-permeable membrane. So first question is, solution of which chamber has a lower water potential? पहला क्वेश्चन ये है कि किस चैम्बर का कम वाटर पोटेंशियल होगा। I will talk every answer, but in very much brief. I am giving all of you time till day after tomorrow to understand the mechanism behind. Everyone should solve. The best answer I will get through my email or my YouTube comment box or anything. We will discuss that answer. Otherwise, I on my own will discuss the details. But अभी क्योंकि आप लोगों को I want to give a chance to solve this question, इसीलिए I am not talking the details of this, but briefing you the answers from here. The very first question is, solution of which chamber has a lower water potential? कौन सा ऐसा चैम्बर है इनमें से जिसका लोअर वाटर पोटेंशियल होगा? I believe the solution should be B. जो B चैम्बर है उसका कम वाटर पोटेंशियल होगा। The next is, solution of which chamber has a lower solute potential? For this, I believe the answer should be B. In which direction? My answers could be wrong as well. I'm not assuring that here the answer should be right, but depending on my answers and your own knowledge, you must consider कि इसमें क्या हो रहा है and you should come up with the right answers and explanation. Third is, in which direction will osmosis occur? Okay, let's not discuss the answers further. I have given you a little hint for A and B. The third question is, in which direction will osmosis occur? आपको बताना है कि किस direction में osmosis होगा इस केस में. The fourth one is, which solution has a higher solute potential? Higher solute potential किसका होगा? Equilibrium में के बाद equilibrium में किस चैम्बर का लोअर वाटर पोटेंशियल होगा? अगर चैम्बर ए का काय -2000 किलो पास्कल है और दूसरे का -1000 किलो पास्कल है, तो किस चैम्बर का हायर काय हुआ? एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगी जब दोनों सॉल्यूशंस की सिचुएशन ये है कि काय वाटर एक का काय और वाटर 0.2 है एंड अनदर वन का 0.1 है और उनको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया गया है। आपको एक सिचुएशन दी है जिसके लिए आपको वैल्यूज दे दी गई हैं एंड विदाउट वैल्यूज भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। First, you should try on your own. Other than that, in our next class, we will discuss this question in very much detail. और इससे आप लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा about osmosis and the direction that happens in osmosis. These type of questions are asked in paper. वो ऑफ कोर्स आपसे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपको इतने सारे समझ में आ गए तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं पे पूछ लिया, then you will be able to solve that question. Other than that, I have an assignment for you that you have to find. You would have heard about osmotic pressure as well. So what is the difference between osmotic potential and osmotic pressure?
There are two assignments for you: detailing explanation and answering this question that we discussed today, and another one is to find out what is osmotic potential and what is osmotic pressure. By this, we are done with our today's topic. We will discuss the questions and further details in our next class. Thank you for watching the video and taking this session. And please keep sharing, liking, following Ishita's Botanic. It has been almost 1 month now I have joined my channel, and because of your inspirations and motivations, I have reached 300 plus subscribers in 1 month, and I believe that we will continue to grow this channel and to grow our education together. So please don't forget to subscribe and watch the videos. Do ask your doubt out from me and complete all the portions of question as well as everything that we studied yet. And whatever doubt you will face, you are always welcome to comment down. Thank you so much.